तलावत के लिए तशरीफ लाएं जाहिद हसन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए फान अहमद। Now I'll present to you the English translation of the verses just recited. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the most gracious and merciful. O perfect leader, by the Quran full of wisdom, thou art indeed one of the messengers on the right path. This is a revelation from the Mighty, the Merciful, that thou mayest warn a people whose fathers were not warned, and so they are heedless. Surely the word has proved true against most of them, for they believe not. We have put round their necks collars reaching unto their chins, so that their heads are raised up. And we have set a barrier before them and a barrier behind them, and we have covered them over, so that they cannot see. Alike, it is to them whether thou warn them or warn them not, they will not believe. Thou canst warn only him who would follow the reminder and fear the gracious God in secret. So give him the glad tidings of forgiveness and a noble reward. Surely we alone give life to the dead, and we write down that which they send forward and that which they leave behind. And all things we have recorded in a clear book. ये हदीस तशरीफ लाए फरीद अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المؤقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Urdu translation. Hazrat Ibn Umar रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहिब कुरान यानी हाफिज कुरान की मिसाल रस्सी से बंधे हुए ऊंट के मालिक की सी है। अगर इसकी निगरानी करता रहे तो उसे भागने से रोक सकता है और अगर उसको छोड़ देगा तो वो भाग जाएगा। सही बुखारी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए सलमान अहमद। English translation. Hazrat Abdullah bin Amr radiyallahu anhu narrates that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The example of the person who knows the Quran by heart is like the owner of the camel. If he keeps it tied, he will control it. But if he releases it, it will run away." Sahih Bukhari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. मलफूज़ात के लिए मसरूर अहमद। Assalamu alaikum. Malfuzat by Promised Messiah alayhi salam. I reflected over the Quran, and then it became evident to me that this blessed word in itself contains a magnificent prophecy. The prophecy is that this book alone is the Quran, that is a book that is worthy of being recited, and there will be a time when this will be the case, even more so than before. In the era when other books will also be recited alongside the Quran alone shall be worthy of being recited, so that the honor of Islam may be saved and falsehood may be uprooted. Other books will deserve to be forsaken completely. This is also the meaning of Furqan, distinction. In other words, this book alone shall stand to distinguish between truth and falsehood, and no other compilation of hadith or any other book for that matter shall be equal in value or stature. Malfuzat Volume 3, page 10. जी नज़म के लिए तशरीफ है दानिश अहमद। Assalamu alaikum. Awsaf Quran Majid. Kalam Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salatu wassalam. Bil-Qur'an है जो सब नूरों से अजला निकला, पाक वो जिससे ये अनवार का दरिया निकला। नूरे फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला, हक की तौहीद का मुरझाई जलाता पौधा, हक की तौहीद का मुरझाई जलाता पौधा,
सब नूरों से अजला निकला या इलाही तेरा फुरकान है कि एक आलम है या इलाही तेरा फुरकान है कि एक आलम है जो जरूरी था वो सब इसमें मुहैया निकला नूरे फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला सब जहां चांद चुके सारी दुकानें देखी सब जहां चांद चुके सारी दुकानें देखी माए इरफान का यही एक ही शीशा निकला नूर फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला पाक वो जिससे ये अनवार का दरिया निकला नूर फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला जज़ाकल्लाह ये ट्रांसलेशन के लिए काफी मशहूर अहमद English translation. The light of the Holy Quran is a light clearer and brighter by far than any other kind of light. And holy indeed is he who is the source of this veritable river of radiance, of faith in the unity of God. The plant indeed had started to wither away and die, when all of a sudden this limpid spring burst into being and began to flow. O Lord, does thy word constitute only a book, or is it a universe in itself? For whatsoever was indispensable for mankind, for progress of the human mind, we find amply provided in this marvelous scripture. It is not possible to liken this light to anything, for in everything, in every quality, it stands alone, absolutely unique. The light of the Holy Quran is a light more clear and bright by far than any other kind of light. जी अब कसीदा के लिए तशरीफ लाएं हाफिज फैजान नासिर एंड रिहान नासिर صل على نبينا صل على محمد يا عين فيض الله والإعفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نظرت وجه البر والعمران يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصباني يا بدرنا يا آية الرحمن
أحدى الهداة وأشجع الشجعان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए तशरीफ लाएं ज़करिया अहमद। Qasida translation. O you who are the fountain of Allah's beneficence and divine understanding, people throng towards you like the thirst towards water. O you who are the ocean of the grace of the benefactor and bountiful God, people flock to you with empty cups in their hands. O you, the son of the kingdom of beauty and virtue, you have illuminated the desert as well as the cities. O our full moon and sign of the gracious God, O the best of all guides, the bravest of the brave. O my Lord, always shower blessings on your prophet in this world and the next. जी अब जनाब मदरसतुल-हिफ्ज़ की रिपोर्ट है जनाब हाफिज़ सदर रबी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected Chief Guest, Hafiz Masood Ahmad Sahib, esteemed teachers and staff of Madrasatul-Hifz, dear students and their parents, and the special invitees. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise and glory belong to Almighty Allah. It is indeed a matter of great happiness and gratitude for me to have your presence this morning for the 4th annual award ceremony of Madrasatul-Hifz, United Kingdom, which is also the very first in-person ceremony as the previous ceremonies were held online. Bil-Qur'an is one of the oldest traditions in Islam, from the very first revealed verse starting from Iqra to the last revealed verse starting from At-Takallum. The Holy Prophet Muhammad ﷺ was himself and many of his companions committed the whole text of the Holy Quran to memory. This tradition was continued from generation to generation without any break, and it is the promise in the Holy Quran that it will continue as we read in Surah-Al-Hijr, verse number 10. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Surely we ourselves have revealed it, and most surely we are its guardian. When Allah the Almighty raised the promised Messiah ﷺ in accordance with the prophecies of the Holy Prophet Muhammad ﷺ to revive the true message and spirit of Islam, the promised Messiah ﷺ injected love and respect of the Holy Quran in his community members through his personal examples, discourses, and writings. There were several outstanding Hufaz present to his service, such as Hazrat Hafiz Maulvi Hakim Nuruddin Sahib, Hazrat Hafiz Roshan Ali Sahib, and Hazrat Hafiz Ghulam Rasul Wazir Wadi Sahib, just few names of many. History of Jamaat tells us that the proper school of Bil-Qur'an started in Qadian by 1917. This was the class where Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad Sahib, who later became Khalifatul Masih III, completed his Hifz Quran in 1922 at the age of 13. The Qadian Hifz class was replicated with several more Hifz schools in several countries such as Pakistan, Rabwa, Canada, UK, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, and some other African countries. Our UK-based Hifz school, commonly known as Madrasatul-Hifz, was started in October 2019, following the directive of Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis.
Our Hifz school stands out among all other Hifz arrangements in the MBA world that it works on the pattern of blended learning, meaning holding virtual and in-person classes while our students also go to their mainstream school. This method was adopted in view of the fact that current legislation in UK does not allow us to form a full-time Hifz school here. Therefore, all our Hifz activities are conducted out of school hours in the evening and at the weekends. Our enrollment procedure is also quite unique. We do not accept any student directly in Madrasatul-Hifz unless they have passed the Al-Hafizun Hifz courses. Alhamdulillah, this approach has shown many benefits and is proving quite successful. Our Madrasatul-Hifz activities are run according to our pre-planned calendar of events, which include weekdays phone classes Monday to Thursday. Every student gets 2 reading slots. Each slot is for 10 minutes maximum, in which a student reads their new hifz and revision to their assigned teachers. These readings take place Monday to Thursday from 7 p.m. to 8:10 p.m. 10 past 8. Friday is reserved for sending recording of Hifz Tilawat of 1/4 of the Holy Quran. These recordings are then evaluated by the Hifz recording examiner during the week, and their reports are presented by the examiner in the Saturday virtual class. After virtual class on Friday, London-based students are called to attend in-person class at Baitul Ihsan, where their hifz and revision are verified and then guided accordingly. Sunday is off and for the catch-up of the targets given to them. All these routines are minutely supervised and facilitated by a team of dedicated volunteer staff members. Just for the sake of prayers, I would like to mention some names. First of all are our volunteer teachers, and many of them have now completed 3 consecutive years, and today they will be recognized by the certificates and other prizes. In the last academic year, ending in September 2023, there were 9 in total weekday teachers. Their names are as follows: Najm Aziz Sahiba, Tahira Sadiqa Nasr Sahiba, Umaira Sadaf Abasi Sahiba, Farzana Ambreen Rahman Sahiba, Nabila Mirza Sahiba, Fawzia Rabbi Sahiba, Nuzat Ahmed Sahiba, Maliha Nayab Sahiba, and Noreen Zafar Sahiba. Next are our Saturday online teachers, and they are 16 in total: Bushra Sajid Sahiba, Amtul Rashid Sahiba, Salma Saeed Sahiba, Bushra Sajid Sahiba, Farhat Jadid Sahiba, Hamda Bushra Sahiba, Nasreen Akhtar Sahiba, Nigat Sahiba, Rashda Tahir Sahiba, Saira Bilal Sahiba, Rihana Raza Sahiba, Sumaira Ishwar Sahiba, Tahira Asim Jamil Sahiba, Tahira Sandhu Sahiba, Uzma Javed Sahiba, and Maryam Hafiz Sahiba. Madrasatul-Hifz activities are reported in Madrasatul-Hifz WhatsApp groups, which are keenly and constantly supervised and managed by our dedicated virtual admin in charge, Shiri Gul Sahiba. Our Hifz recording examiner is Faiza Nawaz Sahiba. Our external examiner is Hafiz Anikur. So we can see that the whole system is fairly organized, aiming at very high standards. Madrasatul-Hifz also runs a mentoring system in which our Huffaz graduates serve as a mentor to junior students. When a student completes any para, the mentor needs to verify their hifz before myself taking the verification test that the person has met the standard criteria to progress further. Madrasatul-Hifz has also a fair system to recognize the achievements of the students when they complete a hifz stage or a manzil by awarding them cash prizes and consumable boosters. During the last year,
several students who were given these prizes in the mosque, in mosque after prayers. Madrasatul-Hifz also sets Hifz targets to accelerate their learning commitment. Today, some of the students who met the set targets successfully in the last year will be given certificates and prizes. Madrasatul-Hifz also records the students' ranking to motivate a sense of healthy competition amongst them. At present, the top three positions are as follows: Masroor Ahmad, 23 parts; Salman Ahmad, 16 parts; Affan Ahmad, 12 parts. During the Ramadan al-Mubarak, although our classes are off, but our students are busy in revising and performing Tarawih duties. Last year, London-based students led Tarawih prayers in the whole month of Ramadan here in Madrasa. And other students also got the chance to lead prayer in their local mosques and Salat centers. This year, they will also lead the prayers in Baitul Ihsan in the whole month of Ramadan al-Mubarak here. Finally, I would like to express my heartfelt gratitude to Madrasatul-Hifz dedicated students, parents, teachers, and admin staff, including staff of Iqbal, for their brilliant cooperation and help in multiple Quranic projects. Our home teachers, the mother of our students, they deserve a big thanks. Our efforts and services cannot bring fruit unless we truly honor and obey the blessed institution of Khilafah. Madrasatul-Hifz regular reports to Huduri Aqdas bring His Holiness prayers for all of us. May Allah accept our weak efforts in the service of His noble book, the final testament to the humanity, and may the Holy Quran become our intercessor when we meet our Lord, the Creator of heavens and earth. Now, I would like to ask the Chief Guest of His Masood Masai to please distribute the certificates and prizes among teachers and students, and our virtual admin in charge, Shiri Gul Saiba, is requested to please start making the announcements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessings of Allah be upon you all. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. With Hafiz Sahib's permission, I will now begin to announce the prize distribution for those students who achieved their targets set by respected head teacher at Madrasatul-Hifz. These targets were achieved between the time frame of 2022 to 2023. I will now announce the names of those students who achieved these targets. Our first achiever is Masroor Ahmad, whom I would like to call on stage. Masroor Ahmad. Our first achiever is Masroor Ahmad. Barakallahu lakum. MashaAllah, well done. Our second achiever I would like to call on stage is Fareed Ahmad. Barakallahu lakum. Well done. Jazakallah. Our next achiever we have is Jahiz Haq. Barakallahu lakum. Well done, mashallah, Jahiz Haq. Last but not the least, our next achiever is Rehan Nasir. Barakallahu lakum. Rehan Nasir.
Jazakallah. Well done, Rehan Nasir. This now concludes the students' prize distribution. Now we move on to our respected teachers who dedicated their time at Madrasatul-Hifz for last 3 consecutive years. However, certificates will be collected by the nominated students. The first appreciation certificate goes to Noreen Zafar Sahiba. May I please request Hafiz Farhan Ahmed to please come and collect the certificate on her behalf. Barakallahu lakum. This appreciation certificate goes to Noreen Zafar Sahiba. Jazakallah. Next appreciation certificate goes to Tahira Siddiqa Nasir Sahiba. May I request Hafiz Fazan Nasir to please come forward and collect on her behalf. Barakallahu lakum. Tahira Siddiqa Nasir Sahiba. Barakallahu lakum. Jazakallah. The next certificate goes to Fozia Rabbi Sahiba. May I request Hafiz Mahid Rahman to please come forward and collect on her behalf. Barakallahu lakum. Fozia Rabbi Sahiba. Barakallahu lakum. Jazakumullah. Next appreciation certificate goes to Tahira Sandhu Sahiba. May I request Hafiz Basil Amini to please come forward and collect on her behalf. Barakallahu lakum. Tahira Sandhu Sahiba. Barakallahu lakum. Jazakallah. Next appreciation certificate goes to Nasreen Akhtar Sahiba. May I request Masroor Ahmed to please come forward and collect on her behalf. Barakallahu lakum. Appreciation certificate goes to Nasreen Akhtar Sahiba. Barakallahu lakum. Jazakumullah. Next we have a certificate for Nighat Naseem Sahiba. May I please request Jahiz Haq to please come forward and receive on her behalf. Barakallahu lakum. Jazakumullah. Our next appreciation certificate goes to Sumara Kishwar Sahiba. May I request Fareed Ahmad to please collect on her behalf. Barakallahu lakum. Sumara Kishwar Sahiba. Barakallahu lakum. Jazakallah. Next we have appreciation certificate for Humaira Sadat Abbasi Sahiba. May I request Rehan Nasir to please come forward and collect on her behalf. Barakallahu lakum. Humaira Sadat Sahiba. Barakallahu lakum. Jazakumullah. Our next appreciation certificate goes to Mubashira Shakur Sahiba. May I request Zakaria Ahmed to please collect the certificate on her behalf. Barakallahu lakum. Mubashira Shakur Sahiba. Barakallahu lakum. Jazakallah. Next certificate goes to Nuzhat Ahmed Sahiba. May I request Affan Ahmed to please collect on her behalf. Barakallahu lakum. Jazakallah. Our next appreciation certificate goes to Hamda Bushra Sahiba. May I request Salman Ahmed to please collect the certificate on her behalf. Barakallahu lakum. Hamda Bushra Sahiba. Barakallahu lakum. Jazakumullah. Our next appreciation certificate goes to Farhana Amreen Rahman Sahiba. May I request Qasid Mashood Ahmed to please come forward and collect on her behalf. Farzana Amreen.
फरजाना अमरीन रहमान साहिबा, बारकल्लाहु लकुम। फरजाना अमरीन रहमान साहिबा, बारकल्लाहु लकुम। Our next appreciation certificate goes to Nabila Mirza Sahiba. May I request Jazid Mahmood Ahmad to please collect on her behalf. Barakallahu lakum. Nabila Mirza Ahmad Sahiba. Mirza Sahiba, Barakallahu lakum. Our last appreciation certificate goes to Maliha Nayab Sahiba. May I request Danish Ahmad to please come forward and collect on her behalf. Barakallahu lakum. Maliha Nayab Sahiba, Barakallahu lakum. Jazakallah, this now concludes Teachers' Prize distribution for all the respected teachers. Jazakallah once again all respected staff for their time and dedication and unconditional support towards this noble cause. May Allah bless you all immensely with His choicest blessings. Ameen. Jazakallah. Now there are two small gifts for one of the first gift for Shirin Gul Saiba with the admin of Madrasatul-Hifz. Can I request Hafiz Abdul Kabir please come and let me The last gift is for our chief guest. I would like to request Officer please أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जनाब मुकर्रम मोहतरम हाफिज़ फजल रफ़ी साहिब और हाफिज़ा कराम वालिदैन और जो भी वो तशरीफ़ फरमा है बड़े बड़े बुजुर्ग भी हैं। मुझे थोड़ी सी झिझक भी आ रही है, मैंने इसलिए ऐनक उतार दिया ताकि मुझे नजर ही ना आए सही। तो ये मेरी बड़ी आनंद की बात है और मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम ये चीज़ गेस्ट के तौर पर मुझे इनवाइट किया गया है। हैरानगी भी हो रही है और खुशी भी हो रही है। ये क्योंकि मेरी अपनी फील्ड है तो मुझे थोड़ा सा इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा। तो मैं हाफिज़ साहब को मशकूर हूँ कि इस दावत की तकरीब में उन्होंने और अब पहले मैं माजरत कर लूँ कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने हाफिज़ साहब से पूछ लिया था तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी कि मैं उर्दू में बात करूँ। तो किसी को अगर समझ नहीं आए तो हाफिज़ साहब जाने तो वो जाने। तो अब मैं थोड़ा सा रास्ता समझता हूँ कि मैं अपना तारुफ भी करवा दूँ। उसके बाद चंद गुज़ारिशात ज़रूर करूँगा अपने अज़ीज़ जो हैं हाफिज़ साहिबान से अब स्टूडेंट से। मेरा नाम मसूद इकबाल अहमद है। क्योंकि कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हुआ है तो हाफिज़ नाम का हिस्सा बन गया है। हाफिज़ साहब मोहतरम को आप फजल रब्बी कहेंगे तो शायद लोग कम पहचाने, लेकिन हाफिज़ फजल रब्बी साहब कहेंगे तो फिर लोगों को पता चलेगा। मेरा भी यही हाल है। ये आसान होता है, हाफिज़ साहब, रब्बी साहब, हाजी साहब हैं
तो इसमें बात का प्रॉब्लम भी हो जाती है, मुझे हुई थी पाकिस्तान में। तो मेरा ताल्लुक जी उठा वजीराबाद पाकिस्तान से है, साथ एक गाँव है जी, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सहाबा भी गुजरे हैं। तो हम लोग शिफ्ट हो गए 1964 में रब्बा में। तो प्राइमरी के बाद फिर मैंने 1966 में एडमिशन लिया। वहाँ पे मस्जिद मुबारक में हमारी हाफिज़ क्लास होती थी। आप लोग तो बड़े माशाल्लाह देख के आपको फख्र महसूस हो रहा है। हमने बड़े गरीबाना माहौल में मस्जिद मुबारक में वो चटाइयाँ होती थी, वो उसकी खजूर की वो जो होती है निशानी पड़ जाती थी पाँव पर। और जो मुझे याद है पानी, वो बहुत अच्छी तरह बल्कि याद है कि पानी जब हम पीते थे तो वो नमकीन पानी था थोड़ा सा मस्जिद मुबारक का। तो एक मटका पड़ा होता था, पता नहीं कब का था, हमने वहीं पे उसे पढ़ा देखा, जब आए हैं उसको छोड़ा फिर उसे उसका हम पानी पिया करते थे। वो साथ ही एक मट्टी का बर्तन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको देखा है माशाल्लाह। और रब्बा में भी अब जो मदरसातुल-हिफ्ज़ इसका नाम, वहाँ मैं गया हूँ, बहुत खुशी हुई और बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे रहाइश वगैरह की एकोमोडेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त। बल्कि मैं जो साथी के नाम थे उनसे मैं कहता था मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक बार फिर दाखिल हो जाऊँ। इतना यकीन करें मुझे मज़ा आया देख। तो बल्कि मैं आपको एक और बात, हमारे साथ नबीना हफाज से स्टूडेंट थे, तो वो ज़ाहिर है खुद तो नहीं पढ़ सकते थे। अब तो वो सिस्टम आ गया, तो बेल सिस्टम उसमें पढ़ लेते हैं, हमारे वक्त में नहीं था। वो फिर हर जो नाबीना थे वो किसी एक के स्टूडेंट के हिस्सा में आ जाते। मेरे हिस्सा में हाफिज तालिब हुसैन आए थे, किसी फौज में गुजरात से थे, हारियां, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वहाँ पे जी हाफिज क्लास में सबसे पहले हाफिज शफीक अहमद मरहूम अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए, उनसे भी हमने शुरू किया हिफ़्ज़ करना। बड़े बुजुर्ग थे और मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ बहुत अच्छी तिलावत करने वाले आप लोग हैं जमात में अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे मुगालिब साहब हैं, बड़ी ज़बरदस्त तिलावत है। लेकिन मैंने ये नहीं कि मेरे उस्ताद थे, लेकिन हकीकत यह है कि वो जब मैंने तरावी में एक में उनका सामे भी था दारुल-क़ुरान में, छोटा सा था आपकी तरह, तो वो जब पढ़ते थे तो नींद आती थी, इतनी मौसीकियत होती उनकी आवाज़ में। ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो मैं काफ़ी और जगह भी जिक्र किया, मैंने कहा आपको मैं बता दूँ, हाफिज शफीक अहमद हमारे वहाँ पे, वो उनकी जब डेथ हुई तो उस वक्त तकरीबन मैंने निसफ कुरान पाक किया था। तो हाफिज कारी मोहम्मद आशिक साहब तशरीफ ले आए, ये फिर हमारे उस्ताद थोड़े अर्सा के लिए हाफिज यूसुफ साहब पगड़ी बांधा करते थे, आप लोगों को भी पता हो, अहमदनगर से वो बिलोंग करते थे। और उनको फिर नहीं आगे कंटिन्यू किया गया, तो फिर ये हाफिज कारी मोहम्मद आशिक साहब तशरीफ ले आए। अब वो पीछे वक्त में मैं गया था तो मैं उनसे मिला था, उन्होंने मुझे पहचान भी लिया था। उनकी यादाश्त मेमोरी का वो प्रॉब्लम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने पहचान लिया, तो बड़ा मज़ा आया, उनका नवासा था साथ। तो ये हमारे साथला कराम थे, अल्लाह ताला उनको और बड़ा उनका हम पर एहसान है। मैं जिधर भी तरावी पढ़ाता हूँ मैं उनका ज़रूर जिक्र करता हूँ, क्योंकि उनकी बड़ी नेकी है हमारे साथ और बड़े प्यार से। कारी आशिक साहब से हमें बड़ा डर लगता था, वो नए नए हाफिज शफीक साहब तो उर्दू स्पीकिंग थे, तो बड़ी उनकी आवाज़ में बात भी बड़े वो प्यार से किया करते थे। तो 1970 में मैंने ख़त्म किया, फिनिश किया, मुकम्मल किया, क्योंकि फिर 1-2 साल का गैप पड़ गया। आप तो वैसे ही बड़े लायक हैं माशाल्लाह, मैं तो ऐसे ही था। तो अच्छा ये आपको बता दें कि जब मैंने तरावी शुरू किया तो मेरी 11 साल 12 साल उम्र थी मेरे हाथ। तो वो मैंने पहले 11-12 पारे पढ़ाए। ये
वहाँ पे खुशाब कायदाबाद वहाँ पे जगह है, रब्वा के मगर सरगोदा चले गए, काफ़ी हालात वहाँ पे भी ऐसे ही थे। तो शदीद सर्दियाँ थी, मुझे ये अच्छी तरह याद है। तो वहाँ मैंने तरावी पढ़ाई और 10 पारे पूरे सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मैंने वही किया होगा। उसके बाद फिर मैं लाहौर दूसरे साल मुझे याद है लाहौर गया, वहाँ पे कृष्ण नगर था, तो उसका शायद नाम भी मतलब है, लतीफ़ सक्कुरी साहब वहाँ पे बुजुर्ग थे, वहाँ पे सदर से बड़े लाहौर के सीनियर, वो भी फौत हो चुके हैं। तो मुझे ये मैं बात जरूर कहूँगा, थोड़ा सा इसमें वो आ जाता है, खुद पसंदी कह लें, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हफ्सा हमारे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पता है, मुझे भी एक दफ़ा दावत दी थी, मैंने कहा नहीं, मैं कमाल का नारायण बन रहा हूँ, मुझे माफ़ करें। तो उस वक्त मेरा घर भी वहाँ मस्जिद के पास था, तो खाई थी मेरी, बड़ी खुशी भी थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। हाफिज़ साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 55 साल 55 ईयर से ज़्यादा हो गए तरावी पढ़ाते हुए, और वहाँ बहुत से फिर लोगों से वास्ता पड़ा, मरबियान से, हमारे लिए बड़े मुहतरम मरबियान, लेकिन उनका कुरान उस वक्त इतना दुरुस्त नहीं था। लेकिन अब जो मरबियान निकल रहे हैं, और उसमें काफ़ी साहब हैं वहाँ का नाम है, उनका सारा हिस्सा है। तो कनाडा में हमें ज़्यादा इसी से होता है कि वहाँ पे कैसा कुरान पाक कैसा लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी हालत ठीक नहीं। मेरे एक भाई हैं बड़े, प्रोफेसर यू, उन्होंने भी MA किया हुआ, तो वो भी बड़ा गौर से देख रहे थे, वो मुझे पूछ रहे थे। मैंने कहा हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, और हमारे जो मुरब्बियाँ हैं बहुत आला कुरान पढ़ते हैं, कम से कम मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं, मुझे तलावत बहुत अच्छी है, दिखता है। तो जनाब उसके बाद मैंने फिर हाई स्कूल में चले गए रब्बा में, वहाँ से मैट्रिक किया, और फिर ये कॉलेज तालीम-उल-इस्लाम कॉलेज रब्बा से MA अरबी किया। तो वैसे हूँ मैं नालायक, मैं आपको बता दूँ, मैं स्पोर्ट्स, बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मुझे दो ही चीज़ें आती हैं, मैं लोगों को बताया करता हूँ कि बास्केटबॉल मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेला हूँ, पाकिस्तान टीम का कैप्टन रहा हूँ, और पुराना है। आप लोग तो है बहुत अच्छा पढ़े हैं, हालात बड़े अच्छे हैं, खुदा आप लोगों का बड़ा दुरुस्त है माशाल्लाह। मैं जिधर भी मुझे अब बच्चों का नाम नहीं याद, मैं फजल मस्जिद में वहाँ पे हम ड्यूटी करते थे, तो वहाँ पे 2-3 बच्चे थे, वो टर्न पे टर्न, तो वो छोटा था हमारा कमरा था, उसके अंदर वो लगा हुआ था, हम सुनते थे, तो मैं तो बड़े गौर से सुनता। वो एक दिन थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, मैंने फिर उनको बुला लिया, एक बच्चे से मैंने कहा, तो वो फिर आए, मैंने कहा बेटा मैंने भी पुरानी पट्टी होती है, जब मैंने ये बताया तो परेशान हो गए, मैंने कहा इस तरह ना किया जाए। सूरज यूसुफ थी, तो उसमें वो बड़ा मुतशाबा, आप समझते हो मुतशाबे को सेम, वो गलती बड़ी लग जाती। तो मैं आपसे जरूर कहूँगा, हादसा ने आपको बताया होगा, अगर आपने कुरान पाक याद रखना है, और याद रखना चाहिए, बड़ी मेहनत आप पर हुई है, आपके वालिदैन ने बनाया, तो कुरान पाक को याद रखना, याद रखने सुनाना चाहिए। और उसका क्या तरीका है, वो तरावी है, रमजान हम इसको सालगिरह भी कहते हैं कुरान पाक, तो इसमें आप सेलिब्रेट करें, कुरान सुनाएं और एंजॉय करें, और लोगों को अच्छा कुरान सुनाएं। तो कोशिश करें, तरह मेहनत करें, क्योंकि रमजान अगर गुजर गया तो उसके बाद कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, आप जब यहाँ से फारूक हो जाएंगे मुश्किल है। तो यही तरीका है कि तरावी जो है, मैंने आपके सामने जैसा भी मैंने कुरान, मेरा आपकी तरफ तलफ़्फ़ुज़ इतना शायद अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने नागा नहीं किया। आपकी उम्र से लेके अब मेरे बाल सेव हो रहे हैं 70 के करीब, लेकिन मैंने तरावी नहीं छोड़ी। साथ साथ बैठे हुए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, जब मैं आया तरावी पढ़ाने लगा, फिर उन्होंने बताया कि हमें तो ज़रूरत है भाई। मुश्किल साहब थे हमारे वहाँ पे सदर साहब, तो रीजनल अजीम, उनके साथ फिर मैं 6 साल वहाँ पे शूटिंग में मैंने तरावी पढ़ाई।
लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा उन्होंने एंजॉय किया। कुरान मैंने पूरा सुनाया, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, लोगों के काम की नोयत ऐसी होती है। तो हाफ़िज़ कुरान जो है मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इंशाल्लाह मेहनत करें। मेहनत तो पहले, क्योंकि ये मेरे साथ के जो दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अमेरिका में हैं, हाफ़िज़ समीउल्लाह हमारे क्लास करते थे, ये जिनका भी जिक्र हुआ है, जो हाफ़िज़ गुलाम रसूल साहब वज़ीराबादी, हाफ़िज़ साहब ने जिक्र फरमाया, ये वज़ीराबाद से बिलोंग करते थे, उनके पोते हैं गालिबन नवासी हाफ़िज़ समीउल्लाह मेरे क्लास बड़ाइश, बल्कि उनका बेटा भी अब हाफ़िज़ कुरान है। तो देख लें, तो हमें भी मौका मिला कि हमें भी फख्र है कि हमारे वज़ीराबाद से। तो सबसे बेहतर जो तरीका है कुरान सीखने का, याद रखने का, वो यही है कि तरह, और तो मुझे तो कोई पता नहीं है। आप किसी को सुनाने, ये जी मैं सुनाता हूँ, अम्मी को सुनाता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही आप बात करते हैं। बहुत से बच्चों से मैंने कहा, तो उन्होंने कहा हम अम्मी को सुनाते, अम्मी को तो आप दाल बना देते होंगे, वो आप मुझे पता क्या करते हैं, क्योंकि मैं बड़ी ये खबर रखता हूँ। तो इसलिए मेहरबानी करें, इतनी आपने मेहनत की है, कुरान याद रखें, सुनाएं, एक दूसरे के साथ रिवीजन करें। हम दौर कहा कि पंजाबी में, उर्दू में कि दौर करते हैं, एक रुकू आप सुनाएंगे, एक मैं सुनाऊंगा, एक इस तरह ठीक रहेगा। ठीक है जी। और आपको मैंने बता दिया कि तरावी में अब भी सुनाऊंगा। यहाँ पे मैं क्राइडन में बैत सुबहान, वहाँ पे मैं तरावी सुनाता हूँ। थोड़ा सा मुझे अफसोस है, वहाँ पे मुझे उन्होंने कह दिया थी कि कुरान हम अपनी मर्जी के मुताबिक ही सुनेंगे। मैंने कहा मैं कुरान पूरा सुनाता हूँ, मुश्किल है यहाँ पर, कुछ ऐसे हालात हैं। तो फिर पिछली दफ़ा भी मुझे मौका नहीं मिला पूरा सुनाने का, इस दफ़ा भी ऐसे ही हालात हैं। तो कुरान जितना भी आप सुना सकें जरूर सुनाएं, ठीक है जी। और वाक एंड पाकिस्तान में एक जगह है, बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ बहुत बड़ी जबरदस्त बात है। वहाँ मैंने 28 साल रेगुलर तरावी पढ़ाई है, और मैं ये क्लेम करता हूँ कि शायद ही हम सब तो माशाल्लाह स्टेटस वाइज तो हमसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन वैसे ये हमसे काफ़ी जूनियर हैं, लेकिन इन्होंने अपने काम से, अपनी काम की परफेक्शन से माशाल्लाह इतने स्टूडेंट तैयार करते हैं और ज़बरदस्त। तो लेकिन फिर ये हमसे हैं काफ़ी छोटे, मुझे याद नहीं है कि ये कौन सी क्लास में थे, लेकिन हमसे काफ़ी जूनियर है। तो मैं ये फख्र से कहा करता हूँ कि मुझे याद नहीं है कि कोई हाफिज साहब ऐसे हों जिनको तरावी पढ़ाते हुए 55 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजरा। बल्कि अगर कोई हो ऐसे तो मुझे ज़रूर बताएं, बल्कि हाफिज साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं खाम खाई क्लेम करता रहता हूँ कि मैं सीनियर मोस्ट हूँ। तो उसकी वजह ये कि मैंने नागा कभी नहीं किया, मैंने सर्जरी कराई हुई है बैक की, उसके बावजूद भी मैं तरावी पढ़ाता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। लेकिन मेरी एज भी 67 है और मैं बड़े अच्छे तरीके से तरावी सुना रहा हूँ और खुश होता हूँ रमज़ान होता है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आदमी मौका मिले तो कुरान याद रखें, कभी आपको इसका नुकसान नहीं होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ, कुरान का फायदा ही फायदा होगा। तो ये जिस तरह मैंने बकायदा ये लिखवाया था कि मुझे शायद चीज़ें भूल ना जाएं, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो रिवीजन का तरीका है वो फिर रमज़ान है, माह रमज़ान, ठीक है जी। आगे फिर वो मैंने थोड़ा सा लिखा है कि आप सबको मालूम है, आप जानते हैं अच्छी तरह कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की मुक़द्दस और इल्हामी किताब है, इसे हिफ्ज़ करना और फिर याद रखना ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फज़ल है, या ये कहें कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद अपने सहाबा को कुरान पाक की हिफ्ज़ करने की तलक़ीन फरमाया करते थे, और जो सहाबी खुशहाली से तिलावत करते थे
हजूर उनसे सुना करते थे और बड़ी खुशी का इजहार करते थे। ये बहुत बड़ी बात है, तो खुदा का रसूल खुश होता है। तो आप भी ऐसा करें कि तलावत वगैरह का आपको मौका मिला करेगा। मुश्किल है, हाफिज साहब के होते हुए स्टेज पर कौन सी चढ़ेगा। ठीक है, मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे इजलास होते हैं, मीटिंग होती हैं, आपको खूब मौका मिलेगा, लेकिन तलावत के अलावा वो याद रखना है। तो मैं इन तमाम बच्चों से जो आप लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें कुरान पर हिफ्ज़ किया है या कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके वालिदैन को भी, क्योंकि यहाँ का माहौल हम तो वहाँ तो उर्दू स्पीकिंग से पंजाबी हमारा तो आसान था, हमें कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन आपके लिए मैं भी थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ काफ़ी मुश्किल पेश आती है उसके में। तो आपके वालिदैन ने भी वक़्त दिया और आपके असातिज़ा कराम जो हैं उनकी तो बहुत मेहनत शामिल है। तो आपके वालिदैन को भी अल्लाह ताला इसका अजर दे, सवाब दे। उनके लिए बहुत बड़े राज की बात है कि पता नहीं एक नई बात है कि जो बच्चा हाफ़िज़ कुरान है उसके वालिदैन वो पता नहीं बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, बल्कि कोई कहते हैं साथ पीछे चले जाए। मेरा अपना बेटा है, वो नमाज में जरा सुस्त है, तो मैं उसे कहता हूँ बेटा जरा पढ़ लिया कर नमाज भी, अल्लाह ने आपको अच्छी सेहत दी है। तो वो कहते हम तो बख्शे हुए हैं, हमें तो उसी पे जन्नत में जाना है, हमारे वालिद फादर है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसे ना ये तो ये है, लेकिन ये बड़े फख्र और एजाज की बात है आपके वालिदैन के लिए। उनका बेटा हाफ़िज़ कुरान है, ये मामूली बात नहीं है। जब आप मेरी उम्र को पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा। यकीन करें हम भी आपके हम ये कर कौन सी बात है, ये कौन अब पता चलता ये, क्योंकि इस उम्र में बड़ा मुश्किल है, याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो याद करना भी। तो अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को, आपके साथियों कराम को इसका अजर फरमाए और इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के तहत ये बात कहना चाहता हूँ कि कुरान हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन हिफ्ज़ करने के बाद भुला देना बहुत खसारे और घाटे का सबब है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम साथिया कराम, तमाम वालिदैन और तमाम इन बच्चों के जो हिफ्ज़ कर चुके हैं और जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी नात से अज़ीम फरमाए और हमेशा अपने ज़ुबान में रखे और उनके लिए कामयाबी की राहें खोले। मैंने आपको पहले ही कह दिया, आप किसी फील्ड में मार नहीं खाएंगे, ये मेरा दावा है अल्लाह के दावे कुरान की बरकत से। और बाकी जब वालिदैन या दोस्त जो तशरीफ लाए हुए हैं इसी भी सिलसिले में, तो मैं उनको भी बड़ा मशहूर हूँ। तो बेटा आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आपकी फैमिली से हूँ, हाफ़िज़ कुरान, तो तरावी पढ़ाता हूँ। शक्ल से शायद मैं नहीं हाफ़िज़ कुरान लगता, हाफ़िज़ साहब तो माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं। तो और बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन नहीं है। हादसा से मैंने टाइम की इजाज़त ले ली थी, लेकिन कोई ज़रूरत उसकी। तो मैं एक दो वाक़या सुनाना चाहता था, लेकिन वो थोड़े वाहिया हैं, क्योंकि जब आप रुबा में ना जब हम हाफ क्लास में थे, तो बाहर की जमातों से मरकज़ में डिमांड आ जाती थी, वहाँ पे हाफिज़ साहब चाहिए था। थोड़े से हफाज से उस में मुझे याद है 15-20 के करीब थे हम लोग, बाकी कुछ मदीना थे। तो लाहौर की जमात थी, कराची थी, वॉकेंड थी, पिंडी, रवा के अंदर बस मुबारक, उसमें बड़े जो सीनियर लोग थे वो पढ़ाया करते, हाफिज़ शफीक साहब थे, कारी आशिक साहब थे। तो वहाँ पे फिर ना कुछ तबाही ऐसी होती है, उनकी तबीयत में होता है कि वो ना आपकी गलतियाँ थोड़ी निकालते हैं, गलतियाँ पकड़ते हैं और समझते हैं कि हमने बड़ा मार के फिर और बड़े हम आते हैं, हाफिज़ साहब की गलती निकालते हैं। उनका अपना वो मिजाज है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई गलती निकाली तो बाद में बताएं, ये नहीं है साहब के सामने उस बच्चे को शिकना चाहिए। इतनी मेहनत बच्चा कर रहा है भाई आपके लिए, तो गलती तो हो जाती है ना, ये तो भी ऐसी बात नहीं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है,
तो इसमें आपने परवाह नहीं करनी, बुरा नहीं बनाना। अगर कोई आपको बताता है तो उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने मेरी तस्वीर ली है, तो इसमें वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे जब हम जाते थे छोटे छोटे से थे आपकी तरह, तो वहाँ पे मेरे इस तरह के दोस्तों से बुजुर्गों से हमें वास्ता पड़ता था। मैं स्टूडेंट था, मैं पैंट आपने शलवार शलवार भी पहने में बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह। तो वहाँ पे हम जनाब पैंट शर्ट पहन के कहीं तो वो वहाँ पे मुसीबत बन जाती थी। गैर अहमदी खास तौर पे ना, वही अहमदियों का वो कादियानी जी कहते हैं, कादियानी को हाफत आया वो पैंट पहनता है। मैंने कोटली कश्मीर में पढ़ाई, ये 1978 की बात है। तो वहाँ पे वो छोटा सा था, तो बड़ा वो डिस्ट्रिक्ट बन गया। यकीन करें वो वो कादियानी का हाफत है, वो पैंट पहनते हैं। उनके लिए ये बड़ी अजीब बात थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी उन्होंने मुझे, उस वक्त माहौल ठीक था, कभी उन्होंने मुझे, मैं बाजार में जाता था, छोटा सा बाजार था, अच्छी तरीके से मिलते और खुश होते थे। मैं थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी करता था, मैं घुस जाता था गेम शेम हो रही है, इस तरह से लोगों से अच्छे बात करते थे। वॉकेंड में हमारे मेरे पीछे एक शिया दोस्त थे, वो रेगुलर तरावी पढ़ा, शिया तरावी नहीं पढ़ी, वो मेरे पीछे रेगुलर तरावी पढ़ा करते थे। और गैर जमात दोस्त भी आते थे, हालांकि ये जो मैंने फ्रेंच रखी है उसमें नहीं थी। तो बड़े हैरान होते थे यार ये कैसा हाल है, पुराना दाढ़ी नहीं। बल्कि मुझे एक दो दफा काफी बुजुर्गों ने गैर जमात बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी अहले हदीस से वाला, किसी एमपी के जरिए से मुझे उन्होंने बुलवाया कि आप क्या साहब से बात करनी है। मैंने कहा यार उन्हें बताना था मौलवी शोली नहीं, ये तो मादर-ए-कुरान है, बस और कुछ गाड़ी आदमी है। उन्होंने कहा वो मैं जरा गुजरते हैं, कुरान पढ़ते गुजरते हैं, दुकानें थी, हम जाते हैं उनसे बात करें। मैं तो उनकी दाढ़ियां देख गया, बड़े कादा पर जदून फैमिली से। तो मैंने कहा मैं तो मौलवी नहीं, मैं तो हाफिज कुरान, बस कुरान थोड़ा बहुत मुझे अच्छा आता है, मैं इमाम नहीं हूँ बकायदा। कहने लगे कि आपने हाफिज दाढ़ी नहीं रखी है। हाँ बस मेरी बता ही सकें तो हो जाती है, मुझे इमामत करा सकते हैं। वैसे मुझे याद है उस वक्त साहब तो यही कहा था, मैंने सारे गैर दाढ़ी के पीछे पड़ते हैं, नमाज भी होती है कि नहीं होती। तो मैं भी हो जाएगा लगभग करने वाला। मैंने कहा बात यह इतना मुझे पता है, अगर पीछे हाफिज कुरान की दाढ़ी वाला है, बारिश है, उसका हक है को तरह बड़ा है। लेकिन अगर मैंने कहा हमारी दिमाग में हफाज काम है, तो मैं तो हवेलियाँ से आता हूँ यहाँ स्पेशल तरावी के लिए, तो मुझे इसलिए पढ़ा पड़ती है पीछे हाफिज कुरान की दाढ़ी वाला है ही नहीं, तो मैं बहरहाल अच्छा समझता हूँ कि दाढ़ी होनी चाहिए। तो वहाँ पे वो मैं जिनके घर में पारी के लिए जाया करता था, तो मैं कुरान पढ़ता जाता था, तो पर ऊंची आवाज से, कोई उस वक्त प्रॉब्लम नहीं था। बस्ती लाला रुख वहाँ पे हुआ, तो वो बड़े बड़े हैरान होते थे। वो कहते थे हम रोजाना आपकी तिलावत सुनते हैं जब आप इधर से वापस जा रहे होते हैं, तो हमारे दिल में बड़ी ख्वाहिश हुई कि आपसे पूछें कि ये क्या सीखते हैं। मैंने कहा नहीं आपकी बात ठीक है, मैं तो आपको देख के जा दिया था, मैं पता नहीं कैसे सवाल कर, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ऐसी बात नहीं। वैसे मैं था कि आपसे पूछे सी, मैंने कहा मेरे हम 6 भाई हैं, मेरे सब बड़े भाई जो हैं उनकी दादी है, मेरे वालिद उनकी दादी है, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ ज़रा ऐसे ही। तो ये भी एक छोटा सा वाक़या था। अगर आप अच्छा कुरान पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो आपका कोई दुश्मन नहीं, कोई आपसे गलत बात नहीं करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत पाकिस्तान में मैंने लंबा अर्सा तरावी पढ़ाई और दुनिया पर एक जगह वहाँ पे गया था मुल्तान में, लाहौर में दारुल ज़िक्र में, जहाँ पे अटैक हुआ था, मेरे एक ब्रदर वहाँ पे शहीद हुए। वहाँ पे मैंने जिस मीनारे पे चढ़ के वो फायरिंग कर रहा था मौलवी, वहाँ पे मैं बैठ के कुरान पढ़ा करता, मुझे याद है। गर्मी बड़ी थी, अगस्त में, जुलाई अगस्त में मैंने तरावी पढ़ाई। तो पिंडी में, वॉकेंड में, रब्बा में, दारुल मस्जिद महमूद है वहाँ पे दारुल जाफर की बिल्कुल पास, वहाँ भी मैंने तरावी पढ़ाई। तो ये आप बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, घबराया ना करें, ठीक है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रमजान में 10 बारे पढ़ाएं। एक दफ़ा 10 पहले पढ़ा दे, फिर टर्न आए तो 10 दरमियान वाले, इस तरह आपको याद रहेगा। बाकी हाफिज साहब साहब मौजूद हैं, बेहतर आपको बता दें, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मेरा तो तरावी का ही है, जो मेरे साथ जो पास है यहाँ पर भी है,
वो बस हाफिज़ साहब ही खिलाते हैं, कुरान वगैरह भी नहीं आते। ये बात नहीं होती। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। हम अब तकरीब जो है वो उसका इख्तिताम करेंगे और मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स का, अपने उफाज ग्रेजुएट्स का। माशाल्लाह अब जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 5 उफाज हमारे इसमें से मुकम्मल हो चुके हैं और अब वो 2 साल दोहराई करेंगे और उसके बाद फिर वो आगे अपने जो भी उनकी तालीमी जो उनके भी प्लानिंग है उसके मुताबिक वो जामिया जाएंगे, अपनी दूसरी स्टडीज़ करें। तो इस वक्त जो हमारा छठा हाफिज़ यानी कि हाफिज़ नंबर 6 इंशाल्लाह ताला इज़ गोइंग टू कंप्लीट इन दिस ईयर, वो है मुस्लिम रहमान और उन्होंने माशाल्लाह 23 पारे कर लिए हैं और जैसा कि प्रोग्राम है इंशाल्लाह इस जैसा आने से पहले ही इज़ स्केड्यूल टू कंप्लीट है। और बाकी भी कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो भी हिफ्ज़ कर रही हैं और उनके लिए हमारा हाफिज़ उनका अलहदा एक सेक्शन है जिसमें वो हिफ्ज़ कर रही है माशाल्लाह, बाद में 10-12 पारे भी कर लिया। तो हाफिज़ मसूद अहमद साहब को इनवाइट करने का मेरे दिल में सबसे बड़ा ये था मकसद कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं यूनाइटेड किंगडम जो हमारी यूके जमात हैं ये द मोस्ट सीनियर इंडिविजुअल हैं जो कुरान करीम से वाबस्ता हाफिज़ कुरान को, जैसा कि आपने सुना भी ये तरावी पढ़ाते हैं। इनको इनवाइट करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि अपने तजुर्बात से आपको आगाह करें और आप देखें कि आपकी उम्रें किसी की 12 है, किसी की 13 है या 14 है या उससे कम है। ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। ये इस तरह का नहीं है कि डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए और 60 या अब इस वक्त जो है 67 के बाद कहते हैं कि यहाँ पे रिटायरमेंट हो जाती है या जब मर्जी अपनी रिटायरमेंट। ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। ये एक किस्म का वक्फ बिल-कुरान है। आपको कहूँ कि अनटिल द लास्ट ब्रेथ आपने कोशिश करनी है कि ये आपके पास रहे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं उसके अंदर बड़ी गहराई है और आप अगर उनके ऊपर गौर करें खासतौर पर वालिदैन से, क्योंकि बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है अपने घर के अंदर। हमारी होम टीचर्स भी हैं और आपने फरमाया कि कुरान करीम याद रखते हैं, यानी कि हुफ़ाज़ का जिक्र किया। कुरान करीम याद करना और कुरान करीम याद रखना ये 2 बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। तो आपने उनकी तारीफ फरमाई है जो रखते हैं, और रखते वही हैं कि अगर आपकी जेब के अंदर आपके पास कोई चीज़ है तभी आप उसको रखते हैं। अगर आपने रख के कोई निकाल दिया तो आपकी जेब एम्प्टी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कोई ट्रांजैक्शन आगे मतलब उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपके पास होना चाहिए तो ना, याद रखते हैं, कीप इट। तो इसके लिए ये है कि जैसे आपने देखा कि आपके सामने बुजुर्ग जो हैं 67, यानी कि यहाँ के अगर हिसाब से देखें यूके का अगर आप इस तरह का तो 67 में ये रिटायर कर देते हैं, 66, लेकिन उनका जज्बा जवाब है, वो अभी भी अपना मुसम्मम बराबर किए हुए हैं। तो एक इनवाइट करने की एक बहुत बड़ी ये वजह थी कि आपको एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मिले कि ये तरावी में 2 पारे 5 पारे ये पढ़ा के आपको एफर्ट करनी पड़ेगी और उसके लिए आप दुआ भी करें और अपने मौके भी तलाश करें। और ये आपने इसको अपने पॉकेट में अपने पास रखना है इसको, और वो उसी वक्त कर सकते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करें। तो जैसे आपने हदीस में भी सुना, आपको हदीस कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल जो है वो एक पालतू एक जो पेट कैमल है उससे दी है। जितने भी पेट है, बाज जो लोग हैं वो डॉग्स रखते हैं, बाज कैट्स रखते हैं, बाज दूसरे जो है रखते हैं, लेकिन अगर आप इनकी साइकोलॉजी देखें, इनकी नेचर देखें, जितने भी पेट जो जानवर रखे जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अरब में बाकी भी चीज़ें थी, आपने इसका क्यों जिक्र किया? क्योंकि हिस्ट्री बताती है और इसकी जो नेचर है ये बताती है कि अगर इसकी कैमल की निगरानी करें तो ये बहुत काम का है। ये बगैर खाए पिए आपको लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन दे सकता है, आपको प्रॉफिट दे सकता है, आपको आपकी मदद कर सकता है, खिदमत कर सकता है।
लेकिन अगर आपने इसकी लुक आफ्टर ना किया, जैसा उन्होंने कहा कि रस्सी से बांध के रखो तो ये आपके पास है, नहीं तो इसने तेजी के साथ आपके घर से बांधना। बाकी जो पालतू जानवर हैं उनको 2 मील छोड़ के जाएं, मसलन अगर डॉग है या कैट है, वो अपनी उनकी स्मेल एक नेविगेशन होती है, वापस आ जाते हैं अपने मालिक के घर। लेकिन कैमल भागा हुआ वापस नहीं आता, तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी। तो लुबे लुबाब ये है कि बातें तो बहुत है और मैं आपसे करता भी रहता हूँ, लेकिन आपने देखा कि प्रैक्टिकल एक आपके सामने एग्जांपल मौजूद कि गो उनका जो उनका शोबा है, जिस तरह उनकी इंटरेस्ट है, वो बास्केटबॉल चैंपियन या उनमें उनको एक महारत है और उसमें उन्होंने नाम भी पैदा किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपना ये किया। और ये बात उनकी बहुत अच्छी है और बिल्कुल सही है कि अगर आप कुरान के साथ वफादारी करें तो जिस मर्जी शोबे में चले जाए आप पहली पोजीशन पे रहेंगे। कुरान करीम हमें क्या सिखाता है? हिफ्स, मेहनत सिखाता है, इस्तिकलाल सिखाता है। मैं अगर कहूँ अपनी एक छोटी सी मिसाल, तो वैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ, लेकिन एक गुड इंटेंशन के साथ मैं कहूँ कि होली कुरान ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे हिफ्स कुरान ने दी वो मेहनत की आदत दी, क्योंकि मेहनत के बगैर कुरान करीम आप मेंटेन कर ही नहीं सकते, और इस्तिकलाल के बगैर, स्टेप फास्टनेस के बगैर आप कर ही नहीं सकते। ये 2 चीज़ें हैं, ये आप किसी भी शोबे में लगा दें, आप वो साइंस का शोबा है, स्पोर्ट्स का शोबा है, मेडिसिन का है, इंजीनियरिंग का है, आप कामयाब। और ये हिफ्ज़ कुरान सिखाता है कि मेहनत एंड कीप गोइंग। तो इसके साथ ही हम इस तकरीब का इख्तिताम करते हैं। मैं मेहमान खुसूसी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप दुआ करा दें। इसके बाद जो है ये ग्रुप फोटोज होंगी स्टूडेंट्स की, फिर सारे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ, और इसके बाद फिर रिफ्रेशमेंट, और फिर याद रखें कि 1:30 नमाज जी दुआ कर लें। अल्लाह